Dear students, today we are going to read the lesson We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, written by Gordon Cook and Ellen East. Dear students, in this lesson, the writer narrates his thrilling journey across the sea, starting from the seaport of Plymouth in England. The narrator duplicated the world journey by sea in the same way as Captain James Cook had done about 200 years earlier, along with his wife Mary, his 7 years old daughter Sue, and his 6 years old son John. The writer hoped to complete his journey of around the world of total 2,55,000 kilometers journey in 3 years in his self-built boat called Wave Walker. Looking like a ship, their ship was caught in the stormy sea and badly damaged, and the sea water flowed into it. The ship could go down into the sea any time, but the writer, his wife Mary, his two little children, and the two sailors showed unusual courage and survived the storm. Little John said, Daddy, we are not afraid to die if we can all be together. The chief object of this chapter is to give an account of this very courage. About the authors, Gordon Cook, born December 3, 1978 in Toronto, is a two-time Canadian Olympic sailor. He sails for the Royal Canadian Yacht Club. He is the son of Stephen Cook and Linda Cook. He had a great interest in writing stories too. Ellen was admitted to the role of solicitor in 2003 and has gained extensive experiences as a litigator, manager, and legal trainer. In 2004, he co-founded and managed a legal practice specializing in criminal litigation and prison law, gaining higher rights of audience in criminal proceedings and working as a duty solicitor. In 2007, he joined the Crown Prosecution Service as a senior Crown prosecutor. Characters in the story: Captain, narrator himself; Mary, Captain's wife; Jonathan, Captain's son; Suzanne, Captain's daughter; Larry Vigil, crewman; Herb Sigler, crewman. Theme of the lesson: human quest for survival. Human nature of knowing and taking on challenges. Fact that courage, bravery, and togetherness can be a remedy for any illness of the world. Name of the lesson is taken from the remark of Jonathan. We are not afraid of dying if we can all be together. Description of the story. The story We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together is an example of the fact that togetherness brings resolve and grit to take on any challenge. The story is about a family who decide to set forth their journey around the world in their ship Wave Walker. The family comprised of the narrator, his wife Mary, son Jonathan, and daughter Suzanne, who set sail from Plymouth, England, along with two experienced sailors, Larry Vigil, an American, and Herb Sigler. In the midst of their journey, they faced a very heavy storm in which they have almost predicted that they would not see the morning of the next day. On the other hand, the two children were so optimistic that they said that they are not afraid of any hardship if the whole family is together. This thought of the children made the elders work more hard to save their lives. In the end, they overcame the trouble and landed to an island where they relaxed and thanked God for saving them. Voyages of James Cook. Here you see the map of the voyages done by James Cook. And the narrator duplicated Captain James Cook's voyage.
Student, please watch the sea route of the voyage completed by James Cook. Students, watch the picture. Here are the important boat parts named used in the lesson. Kindly watch the boat parts and their names to understand the parts names like mast, batten, mainsail, tiller, downhaul, stern, hull, bow, rudder, cockpit, boom, etc. The story begins. In July 1976, my wife Mary's son Jonathan, 6 years old, daughter Suzanne, 7 years old, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. जुलाई 1976 में मैं, मेरी पत्नी मैरी, बेटा जोनाथन, बेटी सुजेन, हम सभी लोग प्लाईमाउथ इंग्लैंड से 200 वर्ष पहले किए गए कैप्टन जेम्स कुक के वॉयज को डुप्लीकेट करने के लिए स्टार्ट किया. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, ए 37-year-old बिजनेसमैन, लंबे समय तक मेरी और मैं, जो कि मैं एक 37 वर्षीय बिजनेसमैन हूँ, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, और हम ये सपने देखे कि हम भी जेम्स कुक की तरह से डुप्लीकेट करेंगे, सी एक्सप्लोरर बनेंगे और वर्ल्ड का टूर करेंगे. And for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. Seafaring, regularly traveling by sea. Leisure is free time, and from 16 years, we were practicing in British waters. Our boat Wave Walker, a 23-meter 30-ton wooden hulled beauty, हमारा जो बोट था वेव वॉकर उसका नाम था, 23 मीटर लंबा 30 टन वजनी लकड़ी का खूबसूरत बना हुआ शिप, had been professionally built and we had spent months fitting it out, और महीनों हमने लगाए थे उसको फिट करने में, बनाने में, and testing it in the roughest weather we could find, और खराब से खराब मौसम में हमने उसकी टेस्टिंग की थी. The first leg of our planned 3-year, और जो पहला चरण था हमारे योजनाबद्ध उसी जर्नी का, वॉयज का, जो कि 1,05,000 किलोमीटर लंबी थी, पास्ट प्रेजेंटली बहुत आराम से सुखद यात्रा रही. एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, हम लोग अफ्रीका के केप टाउन तक पहुंचे. देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और वहां से आगे पूर्व दिशा में बढ़ने के पहले भी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हम लोगों ने 2 क्रूमैन को अपने साथ लिया, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सीजलर. लैरी विजिल अमेरिकन थे और स्विस स्विट्जरलैंड के थे, हर्ब सीजलर. टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, हमने अपने साथ उनको अपनी मदद करने के लिए लिया, क्योंकि हम सबसे खराब मौसम रहने वाले समुद्री एरिया में प्रवेश कर रहे थे, द साउदर्न इंडियन ओशन, भारतीय समुद्री क्षेत्र में. On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales, और केप टाउन से निकलने के बाद दूसरे दिन हम लोगों का सामना बहुत तीव्र गेल से, लहरों के साथ हो रहा था, विंड से, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड बह रही थी. फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज दे ब्लू कंटिन्यूअसली, और वे लगातार बह रही थी. गेल्स डिड नॉट वरी मी, स्ट्रॉन्ग विंड से हमें कोई चिंता नहीं थी, पर द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन उसके कारण जो लहरें उठ रही थी ऊंची ऊंची, वो चेतावनी देने वाली थी. अप टू 15 मीटर्स, 15 मीटर ऊंची लहरें, एज हाई एज आवर मेन मास्ट, हमारे जहाज का जो मेन मास्ट था उतनी ऊंची लहरें. दिसंबर 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन. 25 दिसंबर को हम लोगों ने 3500 किलोमीटर दूर केप टाउन के आगे हम लोग आए, डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, बजाय कि खराब मौसम के. एट्रोसियस, एक्सट्रीमली बैड और अनप्लेजेंट. वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ ए क्रिसमस ट्री, और फिर 25 दिसंबर को हम लोग क्रिसमस का त्यौहार मनाए. न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, और देखते देखते 1 जनवरी आ गई, नए वर्ष का समय, लेकिन मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ. बट वी रीजन दैट ही हैड टू चेंज सून, लेकिन हम लोगों ने एक अंदाजा लगाया
कि ये बदल जाएगा, एंड इट डिड चेंज, और बदला भी फॉर द वर्स। लेकिन स्थिति और खराब हो गई। एट डॉन ऑन जनवरी 2 जनवरी को द वेव्स वर गाइगेंटिक, लहरें बहुत विशाल, वेरी ह्यूज। वी वर सेलिंग विथ ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिब, हम लोग एक छोटे से तूफानी जिब को लगा करके जहाज को चला रहे थे, एंड वी आर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और उसके सारे 8 नॉटिकल माइल की स्पीड पे चल रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, और जैसे जहाज प्रत्येक लहर के साथ, लहरों की ऊंचाई के साथ ऊपर उठता, हमें दिखाई देता। वी कुड सी एंडलेस इनर्मस सी रोलिंग टुवर्ड्स अस, हमें अथाह समुद्र अपनी तरफ, ऊंची ऊंची लहरें हमारी तरफ आती हुई पर दिखाई देती थी। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और हवा का शोर, एंड स्प्रे, और उस बौछार, जो पानी की बौछार आ रही थी, वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, वो हमारे कानों के लिए बहुत तकलीफ दे थी। टू स्लो द बोट डाउन, शिप को स्लो करने के लिए भी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, हम लोगों ने स्टॉर्म जिप को नीचे कर दिया। एंड लेस्ट ए हैवी मोरिंग रोप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न, और स्टर्न के साथ हम लोगों ने एक रस्सी बांध दिया। देन वी डबल लैस्ट एवरीथिंग वेन थ्रू आवर लाइफ रैफ्ट ड्रिल, और फिर सभी चीज़ों को हम लोगों ने दोबारा से बांध दिया और जीवन रक्षक उपायों को अपनाया। अटैच लाइफ लाइन्स, डॉन्ड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स, and waited. The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. और इंतजार किया, जो हमें संकेत आ रहे थे तबाही का, वो 6 बजे वो आई। With an ominous silence, ominous, threateningly inauspicious, डरा देने वाली, अशुभ, ominous means अशुभ, और 6 बजे ऐसे अशुभ संकेत जो है वो मिला। द विंड ड्रॉप्ड, लहरें धीमी पड़ गईं, थोड़ी नीची हुई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, आसमान में गहरे काले बादल छा गए। देन केम ए ग्रोइंग रोर, और फिर एक गर्जना की आवाज सुनाई दी। एंड एन इनर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, और एक विशाल का एक बादल हमारे जहाज के ऊपर गिर गया। विथ हॉरर आई रियलाइज्ड, और डर के मारे, भय के से मैंने महसूस किया, दैट इट वाज नॉट ए क्लाउड, कि एक बादल नहीं था, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, बल्कि एक ऐसी लहर थी जिस प्रकार की लहर मैंने देखी ही नहीं थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, जो दूसरी लहरें थी, साधारण लहरें, उनकी दुगनी आकार की थी। विथ ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, डरा देने वाली, तोड़ देने वाली। द रोर इंक्रीज टू ए थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, और जैसे हम लहरों के साथ ऐसे बढ़ते टकराते, और तीव्र गर्जना होती। एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि हम लोग इस लहर पे सवार हो जाएंगे। बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक, लेकिन तभी एक धमाका, विस्फोट सा हुआ, और वो लहर, विशाल लहर आके हमारी नौका के डेक से टकराई। ए टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और हरा और सफेद समुद्र का पानी हमारी जहाज पर समा गया। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मेरा सर व्हील से, स्टीयरिंग व्हील से टकरा गया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, लेकिन मेरी चेतना थी कि मैं, मेरे दिमाग में बात रही कि मुझे डूबना नहीं है, पानी भर गया था और मुझे तैर के ऊपर आना है और इसमें डूबने से बचना है। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, मैंने स्वीकार किया कि मेरी मृत्यु नजदीक आ रही थी और मैं अपनी चेतना को भी खो रहा था। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और मैंने शांत महसूस किया। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, और जिसकी उम्मीद नहीं थी, मेरा सर पानी के बाहर आ गया। ए फ्यू मीटर्स अवे, और कुछ मीटरों की दूरी के पे, वेव वॉकर वाज नियर कैप्सिजिंग हर मैस्ट and horizontal. Then a wave hurled her upright. My lifeline jerked taut. I grabbed the guard rails and sailed through the air into wave walker's main boom. और मैंने रेलिंग को पकड़ लिया और तैर करके वेव वॉकर के मेन
केबिन में आया। Subsequent wave tossed me around the deck like a rag doll, और उस तीव्र लहर ने मुझे किसी गुड्डे गुड़िया की तरह से उछाल के फेंक दिया था। My left ribs cracked, मेरी बाईं हड्डी टूट गई थी। My mouth filled with blood and broken teeth, मेरे मुंह में खून भर गया था और मेरे दांत टूट गए थे। Somehow I found the wheel lined up in stern, किसी तरह से मुझे व्हील मिला और फिर मैंने स्टर्न को लाइन अप किया फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हैंग ऑन, और फिर मैंने जहाज को तैयार किया कि अगली लहर का सामना करने के लिए, और मैं स्टीयरिंग को पकड़ लिया और लटका रहा। वाटर वाटर एवरीवेयर, प्रत्येक तरफ पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मैं महसूस कर सकता था कि जहाज के नीचे भी पानी भर गया होगा। बट आई डेयर नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहां से व्हील को छोड़ करके ये पता करने के लिए जाऊं। सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन, अचानक से सामने का दरवाजा खुला और मैरी अंदर आई। वी आर सिंकिंग, सी स्क्रीम, वो चिल्लाई, हम लोग डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, और डेक टूट गया है। वी आर फुल ऑफ वाटर, जहाज में नौका में पानी भर गया है। टेक द व्हील, आई साउटेड, मैं चिल्ला के बोला, व्हील पे आओ। एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, और मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा जल्दबाजी में। लैरी एंड हर्ब वेयर पंपिंग लाइक मैडमैन, लैरी और हर्ब जैसे पागलों की तरह से पानी निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े अजीब अजीब कोण बनाते हुए लटक रहे थे। द होल स्टारपोर्ट साइड बर्ल्ड इनवर्ड्स, और पूरे नौका का जो भारी हिस्सा था लकड़ी का, वो अंदर की तरह टूट के धंस गया था। क्रॉकरी, चार्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर, और कपड़े, बर्तन, चार्स, टिन्स, खिलौने, सब कुछ पानी में तैर रहे थे। आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, मैं आधा तैरता हुआ, घुटनों के बल चलता हुआ मैं बच्चों के केबिन में पहुंचा। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, क्या तुम लोग ठीक हो? यस, दिस आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, एक ऊपर बंक पर बैठे उन्होंने कहा, हाँ पिताजी हम लोग ठीक हैं। बट माई हेड हर्ट्स ए बिट, लेकिन मेरे सर में कुछ तकलीफ हो रही है, सेट सू ने कहा, पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प अबव हर आईज, अपनी आंखों के ऊपर एक सूजन दिखाते हुए। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, अब मेरे पास इस समय सूजे हुए सर के लिए कोई समय नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रू एंड कैनवस, हथौड़ी और स्क्रू और कैनवस को ढूंढने के बाद आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, मैं संघर्ष करता हुआ ऊपर डेक पे आ गया। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, जो स्टारबोर्ड एक तरफ से खुल गया था। वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, और प्रत्येक लहर के साथ पानी उस टूटे हुए हिस्से के अंदर आ रहा था। इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, और अगर मैं इसकी मरम्मत नहीं करता हूँ, वी वुड श्योरली सिंक, तो हम निश्चित रूप से डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes, और किसी तरह से मैंने मैनेज किया उस कैनवस को बनाने में, उसकी रिपेयरिंग करने में, वाटरप्रूफ हैच को लगाया उस गेपिंग होल्स जहाँ पे वो पानी अंदर आ रहा था। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी अभी भी नीचे आ रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन अधिकांश पानी अब साइड को चला जा रहा था। मोर प्रॉब्लम अरोज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, और अधिक समस्या आ गई, जो हमारे हैंड पंप्स थे वो खराब हो गए, वो पानी को ठीक से निकाल नहीं रहे थे, उनके रास्ते में ब्लॉक अप हो गया। डेब्रिज फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और चारों तरफ डेब्रिज जो है तैर रहे थे, टूटे हुए टुकड़े, और जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक पंप जो है शॉर्ट सर्किट हो गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, पानी का स्तर डरा देने, चेतावनी से भी ऊपर नौका में भर रहा था। बट ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप्स, लेकिन डेक पर मैंने पाया कि हमारे जो दो अतिरिक्त हैंड पंप्स थे हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड, तो ऊपर पड़ा हुआ है, along with the forestay sail, the jib, the dinghies and the main anchor, उनके साथ ही पड़ा हुआ था। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor, फिर मुझे याद आया कि हमारे पास एक और दूसरा इलेक्ट्रिक पंप है चार्ट रूम में। I connected it to an out pipe, एक बाहरी पाइप के साथ उसको मैंने जोड़ा, एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और धन्यवाद ईश्वर का कि वो काम किया। The night dragged on with an endless bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio, पूरी रात हमारी इसी तरह से थका देने वाली और गुजर गई,
उस ठंडे माहौल में पंपिंग करते रहे, हम पानी को निकालते रहे, स्टीयरिंग पकड़े रहे एंड रेडियो पर संपर्क करते रहे। वी वेर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मेड ए कॉल्स, और ये जो मुसीबत में हम लोग घिर गए थे और उसकी कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द सी, जो कि आश्चर्यजनक नहीं था जिस स्थिति में और जिस जगह पे हम लोग थे। who had swollen alarmingly, उसका सर जो है बहुत सूज गया था। She had two enormous black eyes, उसकी दो विशालकाय आंखें दिख रही थी। And now she showed us a deep cut on her arm, और उसने अपने बाजू पर एक कट दिखाया। When I asked why she had not made more of her injuries before this, she replied, और जब मैंने उससे पूछा कि तुमने अपनी इस चोट के बारे में पहले क्यों नहीं बताई, I didn't want to worry you when you were trying to save us all, मैं आपको तकलीफ में नहीं डालना चाहती थी जब आप हम सभी लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control. 3 जनवरी की सुबह तक पंप ने इतना काम कर दिया था कि पानी को निकाल दिया था, अंडर कंट्रोल हो गया था। For us to take 2 hours rest in rotation, कि हम लोग 2-2 घंटे के अंतराल पर रेस्ट कर सकते थे। But we still had a tremendous leak somewhere below the water line, and on checking, I found that nearly all the boat's main reef frames were smashed down to the keel. और लेकिन अभी भी कहीं किसी लीक से पानी अंदर आ रहा था, और चेक करने पर मैंने पाया कि बोट्स का जो मेन रिप का फ्रेम था वो टूट गया था और वहां से पानी अंदर आ रहा था। In fact, there was nothing to holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. और वास्तविकता ये थी कि ऐसा कोई भी चीज हम लोगों के पास नहीं था कि पूरे उस हब को हम लोग बदलें, उस कील के टूटे हुए टुकड़े पर रिप फ्रेम्स को मरम्मत करें, ऐसी कोई चीज नहीं थी। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions, सिवाय कुछ cupboard partitions के। We had survived for 15 hours since the wave hit, और जब से लहर ने हमारी नौका को हिट किया था तब से 15 घंटे बीत चुके थे। But wave walker wouldn't hold together long enough for us to रीच ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वेव वॉकर अब इस कंडीशन में नहीं थी कि हम लोग उसके सहारे ऑस्ट्रेलिया पहुंच सके। I checked out charts and calculated that there were two small islands a few hundred kilometers to the east. मैंने चार्ट पे देखा और कैलकुलेट किया कि वहां पर कुछ 100 किलोमीटर के अंतर पे ही दो छोटे द्वीप थे। वन ऑफ देम ईल एम्स्टरडैम, उनमें से एक था ईल एम्स्टरडैम, वॉज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो कि एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था। और ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स, और हमारी एकमात्र उम्मीद यही बची थी कि हम दो स्थानों में से किसी भी एक स्थान पे पहुंच जाएं इन द वास्ट ओशन, इस विशाल समुद्र में। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होस्ट सेल, लेकिन जब तक कि ये तीव्र हवा जो चल रही थी, विंड चल रही थी, वो नहीं बंद होती और जिससे हम अपनी यात्रा को जारी रख सकें, और चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, हमारे बचने की उम्मीद कम थी। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, और विशाल लहर ने हमारे जहाज की नौका की जो सहायक इंजन था वो उसका काम करना बंद कर दिया था। ऑन जनवरी 4, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, 4 जनवरी को लगातार 36 घंटे पानी निकालने के बाद, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, अब कुछ सेंटीमीटर वाटर बच गया था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, अब इतना रह गया था कि अब जो थोड़ा बहुत पानी आ रहा था उसी को हमें निकालना था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, और उस मेन मास्ट जो कि ध्वस्त हो चुका था उसके सहारे हम लोग अब यात्रा नहीं कर सकते थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, और प्रेशर पड़ रहा था और जो डैमेज हिस्सा था हल का उससे अब दिक्कतें आ रही थी। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स, तो हम लोगों ने स्टॉर्म जिप को लगाया और जहाँ पे मैंने उम्मीद की थी उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़े जिधर हमने उम्मीद की थी कि वो द्वीप हैं। मेरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स, मेरी को कुछ बिस्किट और बीफ मिला जो हम लोगों ने खाया। वी एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और 2 दिनों में हमने अपने पहली बार भोजन किया। बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन हमारे जो आराम विश्राम मिला था ये क्षणिक थी। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, और 4 बजे फिर से काले बादल उमड़ने लगे। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots, और कुछ घंटों के अंतराल में ही 40 नॉटिकल मील की
गति से हवा बहने लगी एंड द सीज वेर गेटिंग हायर, और समुद्र में फिर से विशाल लहरें उठने लगी। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट, और मौसम पूरी रात खराब रही। एंड बाई डॉन ऑन जनवरी 5, और जनवरी 5 की सुबह आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, हमारी स्थिति और निराशाजनक हो गई। When I went in comfort the children, John asked, और जब मैं बच्चों को दिलासा देने के लिए पहुंचा, जॉन ने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, डैडी क्या हम लोग मरने जा रहे हैं? आई ट्राइड टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, हमने कोशिश की उसे ये सांत्वना देने की, नहीं नहीं, हम लोग बच जाएंगे, बच के निकल जाएंगे। बट डैडी, ही वेंट ऑन, लेकिन वो कहा उसने, डैडी वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, हमें डरने की क्या जरूरत है अगर हम लोग एक साथ हैं, यू एंड मम्मी। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड, जब हम सभी भाई बहन और आप सब लोग साथ हैं तो मरने का क्या भय है। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड, मुझे कोई शब्द नहीं मिला कि मैं उससे कुछ कहूँ। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रन केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड, लेकिन मैं बच्चों के केबिन से निकल के आया अपने आप को दृढ़ निश्चय करके कि जो कुछ भी मेरे पास है अब मैं लड़ूंगा और बचने की कोशिश करूंगा। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, और जो स्टारबोर्ड साइड का टूट गया था उसको बचाने के लिए आई डिसाइडेड टू हीव टू with the undamaged port hull facing the oncoming waves, or using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and two 22-liter plastic barrels of paraffin, इसको लगा के मैंने उसकी मरम्मत की। That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks, और उस शाम मेरी और मैं दोनों बैठे हुए थे और शिप की गति जो है वो अपनी गति से चलता चला जा रहा था और टूटे हुए टुकड़े से पानी भी अंदर आ रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, हम दोनों ने महसूस किया अंत बहुत नज़दीक है। बट वेव वॉकर रोड आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, लेकिन वेव वॉकर समुद्र में आने वाली प्रत्येक लहर के साथ उसका सामना कर रहा था और उठ रहा था और नीचे हो रहा था। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, और 6 जनवरी की सुबह, विद द विंड ईजिंग, थोड़ी हवा कम हुई, आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, और मैंने कुछ रीडिंग लेने की कोशिश की। बैक इन द चार्ट रूम में गया। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, मैंने विंड हवा की रफ्तार पर कुछ काम किया। चेंजेस ऑफ कोर्स, उसमें परिवर्तन। ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, और अपनी स्थिति को जानने की कोशिश की कि हम कहाँ हैं। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन was that we were somewhere in 1,50,000 kilometer of ocean looking for a 65 kilometer wide island. केवल इतना ही जान पाया कि 1,50,000 किलोमीटर में फैले हुए इस समुद्र में, विशाल समुद्र में, हम लोग 65 किलोमीटर का एक द्वीप ढूंढ रहे थे। While I was thinking, जबकि मैं सोच रहा था, शू मूविंग पेनफुली joined me, और शू दर्द से कराती हुई हम लोगों के पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी सोलन, बाई तरफ का उसका हिस्सा बहुत सूज गया था। एंड ब्लैक एंड आइज नैरो टू स्लिट्स, और उसकी आंखें धस गई थी। सी गेव मी ए कार्ड सी हैड मेड, उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, और पहले पेज पर कार्ड पर उसने मेरी और मैरी की तस्वीर बनाई थी और कुछ शब्द लिखे थे। हियर आर सम फनी पीपल, यहाँ पे कुछ हंसी के पात्र लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, कैसे आपको हंसी आती है? आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल, और मैं खूब हंसा। इनसाइड वाज ए मैसेज, और अंदर एक मैसेज था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, हम लोग कितना प्यार करते हैं। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू, और ये कार्ड आपको थैंक यू करने के लिए है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और हम लोग अच्छे की उम्मीद करते हैं। somehow we had to make it, हमें किसी भी तरह से बच के निकलना है। I checked and rechecked my calculation, मैंने फिर से कैलकुलेशन की। We had lost our main compass, हमारा मेन कंपास खो गया था। And I was using a spare, और मैं एक अतिरिक्त कंपास का यूज कर रहा था, which had not been corrected for magnetic variation, जो सही नहीं था, सही सूचना नहीं दे रहा था, वेरिएशन उसमें था। I made an allowances for this and another estimate of the influences of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean, और फिर मैंने कैलकुलेशन की किस इंडियन ओशन में किस प्रकार की हवाएं चलती हैं, मौसम कैसा रहता है। अबाउट 2 PM, 2 बजे दोपहर को, आई वेंट ऑन डेक,
मैं डेक पे गया, आई आस्क्ड लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, और मैंने लैरी से कहा नौका को 185 डिग्रीज पे मोड़ दो। इफ वी वेयर लकी, और अगर हम लोग भाग्यशाली होंगे तो हम बच जाएंगे। आई टोल्ड हिम विथ ए कन्विक्शन, और मैंने एक उम्मीद के साथ कहा। आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, और मैं महसूस नहीं कर सकता था और कि मुझे 5 बजे आइलैंड मिल ही जाएगा। देन विथ ए हैवी हार्ट, और फिर भारी हृदय के साथ, आई वेंट बिलो, मैं नीचे गया, क्लाइम्ड ऑन माई बंक, मैं अपने बंक पे चढ़ा, एंड अमेजिंगली टॉस्ड अप, और आश्चर्यजनक रूप से मुझे नींद आ गई, मैं ऊँग गया, सो गया। व्हेन आई वोक इट वाज 6 PM, और जब मैं जगा 6 बज रहे थे, एंड ग्रोइंग डार्क, अंधेरा घिर रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, मैं जानता था कि हम लोग आइलैंड को चूक गए होंगे और हम लोग कहीं और निकल आए होंगे। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, वी कुडेंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, और जितनी यात्रा बची थी, अब उम्मीद नहीं बची थी कि इस टूटी हुई नौका के साथ हम लोग इस वेस्टर्ली विंड्स का सामना कर भी सकते हैं। एट दैट मोमेंट, और उसी क्षण, ए टॉजल्ड हेड अपीयर्ड बाई माई बंक, और तभी मेरे बंक पर जोनाथन आया। कैन आई हैव ए हग, जोनाथन आस्क्ड, क्या मैं आपके गले लग सकता हूँ, जोनाथन ने पूछा। सू वॉज ऑल्सो बिहाइंड हिम, सू भी उसके पीछे पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, मुझे हक क्यों मिल रहा है। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप पूरी दुनिया में सबसे अच्छे डैडी हैं, एंड द बेस्ट कैप्टन, और सबसे अच्छे कैप्टन हैं। माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने जवाब दिया। नॉट टूडे जॉन, आई एम अफ्रेड, नहीं जॉन, मैं आज नहीं हूँ, मुझे डर है कि मैं चूक गया हूँ। वाई यू मस्ट बी, क्यों आपको डरना चाहिए, सेड सू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, बड़े ही दृढ़ निश्चय के साथ, वास्तविकता के साथ शू ने कहा। यू फाउंड द आइलैंड, अरे आपको आइलैंड मिल गया। व्हाट, आई साउटेड, क्या, मैं चिल्लाया आश्चर्यजनक रूप से। इट इज आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, अरे वो सामने दिखाई दे रहा है। द कोरस्ट, वे एक स्वर में चिल्लाए। एज बिग एज ए बैटल शिप, उतना बड़ा आइलैंड जितना बैटल शिप होता है। आई रस्ट ऑन डेक एंड गेज्ड विथ रिलीफ, मैं भाग करके डेक पे गया और बहुत ही सांत्वनापूर्ण ढंग से मैंने उसको देखा। एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ ईल एम्स्टर्डम, ईल एम्स्टर्डम सामने दिखाई दे रहा था। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, ये वॉल्केनिक रॉक से बना हुआ, विथ लिटिल वेजिटेशन, जहाँ पर ज़्यादा हरियाली पेड़ पौधे नहीं है। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत आइलैंड है। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, और हम लोग किनारे की तरफ चलते रहे। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड, और अगली सुबह उस आइलैंड पर जितने भी 28 लोग थे, चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर, खुशी से उन्होंने हमें किनारे पर उतारा। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, फिर से मेरे पैरों के नीचे जमीन आई थी। माई थॉट्स वेर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, मेरे विचारों में लैरी और हर्बी के बारे में सोच रहा था। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेक्ट स्ट्रेस, जो खुश नजर आ रहे थे और जिस स्ट्रेस से होकर के वो गुजरे थे, उम्मीद भरी और खुशी वाले माहौल में दिखाई दे रहे थे। एंड ऑफ मेरी, मैं मेरी के बारे में सोच रहा था। वो स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, जो उस कठिन परिस्थिति में, उस समय में पूरे समय व्हील से लगी रही। और मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ 7-year-old गर्ल, और सबसे बढ़कर के मैंने 7 वर्षीय बच्ची के बारे में सोचा। वो डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी, जो हमें चिंता में नहीं डालना चाहती थी अपने सर में लगे हुए चोट को बता करके। which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot, जिसे बाद में 6 माइनर ऑपरेशंस कराने पड़े थे, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी उसको रिमूव कराने में, बिटवीन स्किन एंड स्कल, स्किन और स्कल के बीच में। एंड ऑफ ए 6-year-old बॉय वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, और 6 वर्षीय बच्चे के बारे में जिसे मरने से भय नहीं था। Students, here are the vocabulary used in this lesson. Please go through it, write it in your workbook. Thank you for watching the video presentation.